باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ رومیو کے نام خاطس کا 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نوشتہ کیا کہتا ہے، اگر ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ 4 باب کی 3 آیت تکوین کی کتاب اس کا 15 باب 6 آیت اور 4 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جن کے گناہ بخشے گئے ہیں اور جن کی خطائیں ڈھانپی گئی ہیں۔ 4 باب کی 7 آیت مزمور 32 کی 1 تا 2 آیت میں لکھا ہے اور باب 4 کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ختنہ کا نشان اس لیے پایا کہ اس ایمان کی صداقت کی مہر ہو جو حالت قلب میں اس کا تھا، تاکہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو حالت قلب میں ایمان لاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی صداقت محسوب ہو۔ 4 باب کی 11 آیت تکوین کی کتاب اس کا 17 باب 10 آیت میں لکھا، اور 4 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، وہی سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ 4 باب کی 17 آیت تکوین کی کتاب اس کا 17 باب 4 آیت اور 4 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اور ضعیف الایمان نہ ہوا اور نہ اس نے تقریباً 100 برس کا ہو کر اپنے مردے سے بدن کا یا سارا کے رحم کی مردگی کا کچھ خیال کیا۔ 4 باب کی 18 تکوین کی کتاب اس کا 15 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رومیو کے نام خاطس کا 5 باب، تاثیر صداقت بقا۔ پس جب ہم ایمان سے صادق ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملاپ رکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فضل میں داخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر بھی کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر اور صبر سے تجربہ اور تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر ہوا۔ پس کسی صادق کی خاطر بھی بمشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرأت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے، لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔
पर जब हम उसके खून के बायस साधक ठहरे तो अब कितना ज्यादा उसी के वसीले से गजब से बचे रहेंगे। क्योंकि जब हम दुश्मन होने के बावजूद खुदा से उसके बेटे की मौत के सबब से मिल गए तो मिलने के बाद उसकी हयात के सबब से कितना ही ज्यादा बच जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसके सबब से अब हम मिल गए हैं और खुदा पर फख्र भी करते हैं। पर जिस तरह एक आदमी के वसीले से गुनाह ने इस दुनिया में दखल पाया और गुनाह के सबब से मौत ने, और इस तरह मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के ज़ाहिर होने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह मसहूब नहीं होता। हम मौत ने आदम से लेकर मूसा तक उन पर भी सल्तनत की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की मानद गुनाह ना किया जो आने वाले की मिसाल था। मगर ये नहीं कि जिस कदर खुदा है उसी कदर नेमत है। क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से बतेरे मार गए तो एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीले से खुदा का फजल और फजल से नेमत बतेरों पर कितनी ज्यादा बढ़कर हुई है। और जैसा एक गुनाह करने का अंजाम हुआ नेमत का वैसा ही हाल नहीं, क्योंकि अकेले के गुनाह के सबब से अजाब का फतवा हुआ, मगर सादक ठहरने के लिए खताओं की कसरत फजल का बायस हुई। क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से मौत ने उसी एक ही के वसीले से सल्तनत की है, तो जो लोग फजल और सदाकत की नेमत अफराद से पाते हैं वो एक ही के यानी यीशु मसीह के वसीले से हयात में कितनी ज्यादा सल्तनत करेंगे। पास जैसा एक ही की खता के सबब से सब आदमियों पर अजाब का फतवा हुआ, वैसा ही एक ही की सदाकत के सबब से सब आदमियों ने सादक ठहर कर हयात हासिल की। क्योंकि जैसे एक ही की नाफरमानी से बहुत से गुनाहगार ठहरे, वैसे ही एक ही की फर्माबरदारी से बहुत से सादक ठहरेंगे। और शरीयत दरमियान में आ गई ताकि खता ज्यादा हो, लेकिन जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ है वहाँ फजल इससे भी ज्यादा हुआ है, ताकि जैसे गुनाह ने मौत के सबब से सल्तनत की है वैसे ही फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दायमी हयात के लिए सदाकत के जरिए से सल्तनत करे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। रोमियो के नाम खातुस का 5 बाब की 5 आयत में लिखा है, और सब्र से तजर्बा और तजर्बे से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूहुल कुद्दस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में अंडेली गई है। 5 बाब की 5 आयत मज़मूर 22 की 6 आयत में लिखा है, और 5 बाब की 16 आयत में लिखा है, पर जिस तरह एक आदमी के वसीले से गुनाह ने इस दुनिया में दखल पाया और गुनाह के सबब मौत ने, और इस तरह मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। 5 बाब की 12 आयत, एक आदमी से यानी आदम से जिसके वसीले से असली
गुनाह जिसे मरूसी गुनाह भी कहते हैं सब इंसानों में गिना गया और 5 बाब की 13 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के ज़ाहिर होने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह मंसूब नहीं होता, ताकि हम मौत 5 बाब की 13 आयत पलूस मूसा की शरीयत के हक में कहता है कि जब तक शरीयत ना थी गुनाह गिना ना जाता था, तो भी लोग दुनिया के शुरू से गुनाह करते थे, क्योंकि वो उस शरीयत को जो खुदा ने हर एक के दिल में लिख दी ना मानते थे। रोमियो 3 बाब 14 आयत और 5 बाब की 20 आयत में लिखा है, लेकिन जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ है वहाँ फजल इससे भी ज़्यादा हुआ है। 5 बाब की 20 आयत का हाशिया अगले सफ़े पर देखिए। 5 बाब की 20 आयत, गुनाह ज़्यादा हुआ ये नहीं कि गोया खुदा ने शरीयत को इस इरादे से दिया कि गुनाह ज़्यादा हो, मगर उसने इंसान को अच्छी और खूब शरीयत इसलिए सौंपी ताकि इस पर अमल करे और जिए, लेकिन वो अपने टेढ़े और सख्त दिल से शरीयत को उल्टाने लगा और इस तरह से गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया। आमीन।